So, a very good morning, student. Welcome to the lecture 6. Welcome to the lecture 7 of the online lecture series on the course, that is Railways, Airport and Waterways. This subject, that is this course, Railways, Airport and Waterways, has been actually designed for the students of the Civil Engineering Department related to the final year, right? And in continuation to that, we have covered lecture 6. Till lecture 6 we have covered the module 1, and in this lecture 7 this will be actually covering the numerical part of the module 1. So till now we have covered what is railway, what are the different rails, what are the sleepers, what are the function of the sleeper. And when I was talking about the sleeper, in that lecture only, I told you about the sleeper density. Now, in this lecture, we'll solve some of the numerical related to the sleeper density. So, specifically, this will be related to the sleeper density, right? So, we'll solve one by one, and I will tell you the empirical formula while solving the numerical. So, let us have look towards the numerical 1. So numerical 1 actually says that find out the expression. Numerical 1 is like this. For example 1, we'll solve about the example 1, and this particular lecture is related to the numerical problems related to sleeper density. Okay, so this will be related to the sleeper density. Okay, so this thing is clear to you all that this particular lecture will be related to the sleeper density. Now the first question is, the first problem with us is find out the expression, find out the expression, find out the expression for sleeper density, for sleeper density, for sleeper density for a broad gauge track, for a BG. BG here means broad gauge. For a broad gauge track, if 19 sleepers, if 19 sleepers, if 19 sleepers are used, under a rail length, under a rail length. So let us have look at this problem. What this problem says? This problem says find out the expression for the sleeper density for a broad gauge track if 19 sleepers are used under a rail length. So we have to find out the expression which will be used for calculating the sleeper density. हमें इसमें स्लीपर डेंसिटी का इक्वेशन निकालना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जिसमें 19 sleepers under a rail length are being used, right? So we'll start with this. अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले गिवन पार्ट को देखना होता है. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके गिवन पार्ट पे हमको फोकस करना पड़ता है, वहीं से हमें अननोन पता चलता है. ठीक है, तो पहला गिवन पार्ट क्या है? फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर स्लीपर डेंसिटी ऑफ अ ब्रॉड गेज ट्रैक. ओके, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक अवेलेबल, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, राइट? सो ब्रॉड गेज, अगर हम स्पेसिफिकली ब्रॉड गेज के बारे में बात करते हैं तो ब्रॉड गेज के केस में जो हमारा रेल लेंथ होता है वो कितना होता है? इट इज 12.8 मीटर और यू कैन से 13 मीटर. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर. सो लेंथ ऑफ अ रेल, लेंथ ऑफ अ रेल, लेंथ ऑफ अ रेल, लेंथ ऑफ अ रेल फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक, मतलब फॉर बीजी ट्रैक,
अगर हम कोडल प्रोविजन के थ्रू जाते हैं, जो इंडियन रेलवे ने रिकमेंड कर रखा है वो कितना है 12.8 मीटर। बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम कभी कभी उसे राउंड ऑफ फिगर में उसे कंसीडर कर सकते हैं टू मेक द एक्सप्रेशन इजी, राइट। सो लेंथ ऑफ अ रेल फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक इक्वल्स टू 12.8 मीटर और say 13 मीटर। What I have done, I have approximated this value, मैंने 12.8 मीटर को 13 मीटर के पे अप्रोक्सीमेट कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्लीपर डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? स्लीपर डेंसिटी इक्वल्स टू m प्लस x, ये हमें पता है। स्लीपर डेंसिटी इक्वल्स टू m प्लस x। स्लीपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m प्लस x, राइट। वेयर m इज, जहां पे वेयर m इज, m का मतलब क्या हुआ? रेल की लंबाई, किसमें, किस यूनिट में? मीटर्स में, राइट। लेंथ ऑफ रेल in meters, right? X is a factor depending upon several factors. For example, axle load, section of the rails, etc. Okay, यहां तक क्लियर हुआ? नाउ सी वंस अगेन, एक बार प्रॉब्लम पे देखो फिर से। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द स्लीपर डेंसिटी फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक। तो हमें ब्रॉड गेज ट्रैक तो दे दिया, हमें वहां से ट्रैक की लेंथ पता चल गई। इफ 19 स्लीपर्स आर यूज्ड अंडर अ रेल लेंथ, ठीक है, 19 स्लीपर्स आर यूज्ड, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमें स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स अंडर अ रेल लेंथ। नंबर ऑफ स्लीपर्स अंडर अ रेल लेंथ इज नोन एज द स्लीपर डेंसिटी। मतलब एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है, एक फैक्टर है जो ये बताता है कि एक रेल लेंथ पे कितने स्लीपर्स का हमने यूज किया। मतलब अगर ब्रॉड गेज ट्रैक है, मतलब 12.8 मीटर लंबा अगर रेल लेंथ है, तो उस केस में हमने 19 स्लीपर्स उस पर्टिकुलर रेल लेंथ पे कॉन्टिन्यूसली यूज किया है, ये बताता है, ठीक है। तो स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, तो हमें जो स्लीपर डेंसिटी है, इक्वेशन नंबर 1 में देखो, जो स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी है? 19 है, राइट। और m की वैल्यू क्या है? m इज योर रेल लेंथ, ठीक है, m इज योर रेल लेंथ। तो रेल लेंथ की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 13 मीटर। सो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, स्लीपर डेंसिटी इक्वल्स टू m प्लस x, स्लीपर डेंसिटी इक्वल्स टू m प्लस x, और स्लीपर डेंसिटी इस केस में क्या है? इट इज 19। सो 19 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? 13 प्लस x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो इस केस में x जो एक फैक्टर है, जो एक्सल लोड पे डिपेंड करता है और रेल लेंथ के सेक्शन पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू कितनी हमने निकाल ली? 6। तो इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन। सो द एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी, एक्सप्रेशन क्या होगा? m प्लस x, राइट, एंड x इज योर 6। सो एक्सप्रेशन इक्वल्स टू m प्लस x एंड x इक्वल्स टू 6। तो फॉर्मूला क्या हो गया? m प्लस 6। So expression will be
and this is your required answer for this numerical problem. So इस numerical problem को एक बार और देखो. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कह क्या रहा है? ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द स्लीपर डेंसिटी फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक इफ 19 स्लीपर्स आर यूज्ड अंडर अ रेल लेंथ. इसका मतलब हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है जो कि स्लीपर डेंसिटी के केस में अगर 19 स्लीपर्स पर रेल लेंथ यूज हो रहा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा. इसका मतलब उसके स्लीपर डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा. स्लीपर डेंसिटी ऑलरेडी हमें दे रखी है, राइट. स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 19 स्लीपर, क्योंकि स्लीपर डेंसिटी क्या होती है? स्लीपर्स अंडर अ रेल लेंथ. ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ रेल फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक. ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए लेंथ कितना होता है? 12.8 मीटर, जो मैंने लिख दिया, या उसको 13 मीटर कह सकते हो. स्लीपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? m प्लस एक्स. m क्या होता है? लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स, और इस केस में कितना है? 12.8 मीटर और 13 मीटर, राइट. x is a factor depending upon the several factor, that is axle load and section of rail etc. और x इस केस में हमको कितना है यही तो निकालना है. ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जाते हैं. स्लीपर डेंसिटी 19 है, m की वैल्यू 13 है, x हमें निकालना है, तो x की वैल्यू 6 आ गई. एक्सप्रेशन स्लीपर डेंसिटी की इसमें हमको बतानी है जो m प्लस एक्स होती है. m प्लस एक्स, x की वैल्यू 6 है, तो एक्सप्रेशन आंसर हो गया m प्लस 6. Sometimes this type of question is being asked in your semester exam, right? 2 marks में भी कभी-कभी ये पूछ लेता है. It is very easy to gain 2 marks by just follow these steps. You will come to the answer. Okay, clear है? अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, so this was the about the first question. Now I will rub this. I'll clear one and we'll move toward the next. थोड़ा दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? पहले देखो. यूजिंग अ स्लीपर डेंसिटी, using a sleeper density of m plus 5. Using a sleeper density of m plus 5, find out the number of sleepers find out the number of sleepers required for constructing a railway track 640 meters long. 640 meters long, and this is actually broad gauge track, right? So first of all look at the problem. कोई भी प्रॉब्लम आए उस सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम के अननोन्स को देखना है और ये देखना है कि हमें क्या क्या उसमें दिया गया है और क्या हमें निकालना है. पहली बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं. यूजिंग अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ m प्लस 5, मतलब स्लीपर डेंसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है, जो x की वैल्यू हमें उसमें निकालनी थी, इसमें x की वैल्यू 5 ऑलरेडी निकाल के दी हुई है.
क्या कह रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ दी स्लीपर्स निकालना है, इसका मतलब स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन दिया हुआ है कौन सा हम यूज करेंगे, ठीक है, स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, जो उसमें 19 दिया था, इस केस में हमको निकालना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे ट्रैक 640 मीटर लॉन्ग, मतलब हमें 640 मीटर लॉन्ग लंबा एक रेल ट्रैक बनाना है, और उस केस में स्लीपर डेंसिटी हमारी m+5 है, मतलब एक ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए कितना स्लीपर यूज करेंगे ये हमको पता चल जाएगा। तो हमें 640 मीटर लॉन्ग रेल के लिए कितना स्लीपर यूज करना है ये भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, आओ कैसे, ब्रॉड गेज ट्रैक है, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए मैंने कितना बताया आपको, कितना लेंथ होती है 12.8 मीटर या तो 13 मीटर, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे आइए, सोल्यूशन क्या कहता है, लेंथ ऑफ ईच रेल on a broad gauge track equals to 12.8 मीटर, ये होता है, ये हमको पता है। तो कितने मीटर का होता है ब्रॉड गेज, एक बार में 12.8 मीटर का, कितना लंबा बनाना है 640 मीटर, तो ये पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि हमें कितने रेल्स की रिक्वायर्ड है, बड़े आराम से पता चल जाएगा। कैसे, 640 मीटर लंबा बनाना है, इसको डिवाइड कर दो 12.8 से, ठीक है। कैसे करेंगे, आओ, टोटल नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड विल बी, टोटल नंबर ऑफ रेल्स रिक्वायर्ड विल बी, कितना होगा, ये हो गया 640 डिवाइडेड बाय 12.8, राइट। सॉल्व करो, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 50 reals, it will be approximately 50 rails, right. Length of each rail on a broad gauge track 12.8 meter, so total number of rails required will be 640 upon 12.8, तो टोटल रेल्स कितना निकल गया 50 रेल। स्लीपर डेंसिटी कितनी दी हुई है m+5, राइट, सो वी हैव द स्लीपर डेंसिटी एज m+5। स्लीपर डेंसिटी कितनी दी हुई है, स्लीपर डेंसिटी इक्वल्स टू, इसका एक्सप्रेशन कितना दिया हुआ है m+5, m को हम कितना लेते हैं 13, तो 13 + 5 कितना हो गया 18 मीटर, सॉरी 18 स्लीपर्स, सॉरी 13 + 5 इक्वल्स टू 18, और 18 क्या हो गया 18 स्लीपर्स पर रेल लेंथ, 18 स्लीपर्स पर रेल लेंथ, मतलब एक रेल के लिए कितना स्लीपर्स 18 स्लीपर्स पर रेल लेंथ, यही लिटरल मीनिंग होती है स्लीपर डेंसिटी की, ठीक है। तो एक रेल के लिए 18 स्लीपर यूज करेंगे, और इस 640 मीटर्स लॉन्ग के लिए कितने रेल हुए 50 रेल, तो 50 रेल्स को इससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटायर जो भी हमको रेल्स की रिक्वायर्ड है, सॉरी जो भी हमको स्लीपर की रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड विल बी therefore total number of sleepers required will be कितना 18 स्लीपर पर रेल लेंथ, 50 के लिए 50 into 18 and it equals to 900 sleepers। अगेन क्या निकालना था
टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स कितना निकला? तो ये आपका है आंसर, राइट। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? प्रॉब्लम कह रहा है यूजिंग अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ m+5, मतलब हमको स्लीपर डेंसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द स्लीपर्स, हमें नंबर ऑफ स्लीपर्स निकालना है रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे ट्रैक 640 मीटर लॉन्ग, मतलब हम एक रेलवे ट्रैक बना रहे हैं कितना लंबा? 640 मीटर लॉन्ग, और उस रेल ट्रैक में कौन सा ट्रैक है? ये ब्रॉड गेज ट्रैक है, ब्रॉड गेज ट्रैक है। तो 640 मीटर्स के लिए हमें कितना रेल यूज होगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। हमको ये पता है कि स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ द स्लीपर पर रेल लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो 640 मीटर लंबा ट्रैक बनाने के लिए कितनी रेल का यूज करेंगे, हम ये निकालेंगे। एक रेल की लेंथ कितनी होती है? हमें पता है वो 12.8 मीटर होती है, या तो उसको 13 मीटर भी कह सकते हो, से, ठीक है, 13 मीटर भी कह सकते हो, ठीक है। तो 13 मीटर, तो 640 मीटर के लिए कितना होगा? सिंपल है, डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 50 रेल, 50 रेल आ गया, इतना क्लियर है। अब स्लीपर डेंसिटी से हम ये निकाल सकते हैं, इक्वेशन दी हुई है तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितने स्लीपर पर रेल लेंथ के लिए यूज हो रहे हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। m+5 की वैल्यू है, ये m क्या है? ये है आपका 13 + 5, तो 18 स्लीपर पर रेल लेंथ, तो 18 स्लीपर तो हमको मिल गया कि पर रेल लेंथ हम यूज करेंगे। तो 50 रेल के लिए कितना होगा? सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, हमें 900 रेल मिल गया। तो 900 स्लीपर, सॉरी रेल नहीं मिला, स्लीपर, 900 स्लीपर विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग 640 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज ट्रैक। इट इज क्लियर? ओके, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो स्लीपर डेंसिटी की इक्वेशन निकाल ली हमने, नंबर ऑफ स्लीपर निकाल लिया। तो एक प्रैक्टिस में देखते हैं, इस तरह का एक अगर और प्रॉब्लम आता है, these are actually the problem which will be asked in your semester exam। तो बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, 2-3 बात को याद रखना है। एक तो स्लीपर डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, फिर ब्रॉड गेज के लिए कितने मीटर की लेंथ होती है वो याद रखनी है, और स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करते हैं तो these are very easy problems and easy to score, तो 5 marks you will easily score। बहुत स्कोरिंग एरिया है ये, सो स्टूडेंट्स इस पे काफी ध्यान देने की जरूरत है, because there are not much numerical from the module 1। एक्चुअली मॉड्यूल 1 में केवल जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इसी स्लीपर्स वगैरह से रिलेटेड है। सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पूछे ही पूछे जाएंगे, ये न्यूमेरिकल आपको आएंगे ही आएंगे, राइट। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल 3 कहता है, दिस इज एग्जाम्पल 3, 1 2 आई हैव सॉल्व, नाउ विल मूव टुवर्ड द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल कहता है what would be the expression, what would be the expression for sleeper density, what would be the expression, what would be expression for sleeper density if the rail length used, if the rail length used in a track, used in a track, used in a track is 19 meter, and there are 22 sleepers
there are 22 sleepers under one rail length. Under one rail length. ओके, पहले प्रॉब्लम देखो, क्या क्या दिया है वो देखो और क्या पूछ रहा है वो देखो. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द स्लीपर डेंसिटी. तो स्लीपर डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है. इफ द रेल लेंथ यूज्ड इन अ ट्रैक इज 19 मीटर. देखो यहां ये नहीं बोल रहा है कि ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है. यहां पे आपको सिंपली ट्रैक की लेंथ दे रही है. कुछ स्पेशल केसेस में ट्रैक की लेंथ यूज की जाती है, उस केस में ये ट्रैक की लेंथ दे दी है. ट्रैक की लेंथ जो आपको दी है वो कितनी है, इट इज 19 मीटर. सो लेंथ ऑफ द ट्रैक, अगर हम सोल्यूशन पे जाते हैं तो लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना है, 19 मीटर. ठीक है, लेंथ कितना है, ट्रैक का लेंथ कितना है, 19 मीटर. ठीक है, एंड देयर आर 22 स्लीपर्स अंडर अ रेल लेंथ. मैंने क्या बताया, स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ स्लीपर्स अंडर ए रेल लेंथ. तो क्या निकल के आया, कैसे अननोन्स को पता करोगे, ये एक थोड़ा सा क्रक्स है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं कहीं देगा कि ये स्लीपर डेंसिटी है, ये रेल लेंथ है. ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको मिलेगा. तो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में ही दिया है 22 स्लीपर्स अंडर वन रेल लेंथ. तो स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 22 है. ठीक है, तो स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 22 हो गई. बहुत तुरंत आसानी से क्या करोगे, स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, m प्लस एक्स. और m प्लस एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 22. m की वैल्यू कितनी दी है इस केस में, 19 मीटर. 19 प्लस एक्स कितना, 19 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 22. तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3. x की वैल्यू हो गई 3. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. निकालना क्या है, व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है, m प्लस एक्स, और x क्या होता है, इज अ फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द सेवरल फैक्टर सच एज एक्सल लोड और सेक्शन, रेल सेक्शन. तो एक्सप्रेशन फॉर स्लीपर डेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर स्लीपर डेंसिटी कितना हुआ, m प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 3, m प्लस 3. तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, और पूछा क्या है, यही आंसर आया. अगेन 5 मार्क्स, वेरी इजी, कुछ करना नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़िए, गिवन पार्ट को लिखिए, अननोन क्या है उसको एक तरफ लिखिए, गिवन पार्ट से ही धीरे धीरे अननोन्स को निकालने की कोशिश कीजिए. यही सिंपल है, बहुत सिंपल है. ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखें, वेरी गुड, देखते हैं, नो प्रॉब्लम. जितने न्यूमेरिकल, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए. ठीक है, इस केस में मैंने आपको दिखाया ना कि डायरेक्टली अननोन कभी भी लिख के आपको नहीं देगा कि ये है, वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा, फिर आपको निकालना है अपनी रीजनिंग का यूज करके. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. सो इट विल बी दी एग्जाम्पल 4. मैं बहुत सफिशिएंट आपको न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूं. इस न्यूमेरिकल के अलावा आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है. ये 3-4 न्यूमेरिकल जो मैंने करा दिए हैं, इनको आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना. 5 मार्क्स आपके फिक्स है और इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है. और इसमें से एक ना एक न्यूमेरिकल आपको आएंगे ही आएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में, बिकॉज बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है न्यूमेरिकल का मॉड्यूल 1 से. मॉड्यूल 2 से है, बट मॉड्यूल 1 से उतना नहीं है. जब हम रेलवे ट्रैक ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उसमें मिलेगा हमको न्यूमेरिकल. ये 5 मिनट का, आई एम नॉट सेइंग वहां वैरायटी मिलेगी, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है. सो जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो इन्हीं 3-4 न्यूमेरिकल में से ही आपको न्यूमेरिकल पुट अप करेगा. राइट, तो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर 6. ट्रैक
A broad gauge track has a sleeper density of m+6. ठीक है. If track is laid with welded rails of 26 meter length find out the number of sleepers. Find out the number of sleepers on rail length. Find out the number of sleepers on rail length. पहले प्रॉब्लम को समझो, अननोन को देखो और निकालना क्या है उसे देख लो. क्या बोल रहा है? ब्रॉड गेज ट्रैक है. ठीक है. स्लीपर हैज अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ m+6. ठीक. तो स्लीपर्स अ ब्रॉड गेज ट्रैक. कौन सा ट्रैक है? ब्रॉड गेज ट्रैक. और ब्रॉड गेज ट्रैक की केस में लेंथ कितना होता है ट्रैक का? बहुत आसान है. मीटर लिख दो. ठीक है, चलो लिख दिया. ब्रॉड गेज ट्रैक हैज अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ m+6. एक्सप्रेशन दे दिया है. कितना? m+6. ठीक है, बहुत इजी. m+6 दे दिया. m की वैल्यू भी हमको दे दिया है. कितनी? 19. क्या निकल के आया? 19 निकल के क्या आया? वैल्यू नहीं निकल के आई. 19 स्लीपर्स पर रेल लेंथ. ठीक है. इफ द ट्रैक इज लेड with the welded rails of 26 meter length. ठीक. If track is laid with welded rails of 26 meter length, find out the number of sleepers on the rail length. कितने मीटर का रेल यूज हो रहा है? 26 मीटर का. एक रेल की लेंथ 13 मीटर. तो टोटल नंबर ऑफ रेल क्या हो जाएगा? इसको 26 को 13 से डिवाइड कर दूं, 2 रेल्स हो जाएगा. एक रेल के लिए कितनी स्लीपर यूज हो रही है? 19. निकालना क्या है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स ऑन द रेल लेंथ. तो टोटल रेल लेंथ में कितने रेल यूज हो रहे हैं? 2. तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर क्या होगा? 19 इंटू 2. कितना हो गया? पूछा क्या है? यही पूछा है, बस आ गया. मिल गए 5 नंबर. किया क्या? क्वेश्चन को पढ़ा, उसे लिखा और वहीं से निकाल लिया. इससे इजी हो सकता है क्या कुछ? ब्रॉड गेज ट्रैक दिया है, तुरंत मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ द ट्रैक 13 मीटर. हैज अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ m+6, मतलब एक्सप्रेशन दे दिया. मैंने स्लीपर डेंसिटी m+6 लिखी, m की वैल्यू लिखी और 19 स्लीपर. लेकिन मैंने ये नहीं लिखा स्लीपर डेंसिटी इक्वल टू 19, मैंने लिखा 19 स्लीपर्स पर रेल लेंथ. मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि आगे के प्रॉब्लम को समझने के लिए इजी हो गया.
मतलब एक रेल के लिए 19 स्लीपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, ट्रैक इज लेड विथ वेल्डेड रेल्स ऑफ 26 मीटर लॉन्ग। एक रेल की लेंथ कितनी मैंने लिखी, 13 मीटर, तो 26 मीटर रेल लेंथ के बनाने के लिए कितने रेल यूज होगा, 26/13, कितने हो गए, 2 रेल्स। नंबर ऑफ स्लीपर्स ऑन रेल लेंथ, तो 19 स्लीपर्स एक रेल के लिए, 2 रेल हमको प्रॉब्लम में है, तो 19 इंटू 2 38 स्लीपर। समझ आया। एक लास्ट प्रॉब्लम और देखेंगे, उसके बाद ये न्यूमेरिकल पार्ट आपका यहीं खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, मैंने जितने न्यूमेरिकल हो सकते थे वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। तो डू नॉट गेट पैनिक, आइए सॉल्व करें इसको, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन पहले देखते हैं। अ मीटर गेज ट्रैक हैज अ स्लीपर डेंसिटी, थोड़ा सा फ्लेवर यहां चेंज कर दिया है। अ मीटर गेज ट्रैक हैज अ स्लीपर density if the rail length used if the rail length used if the rail length used a meter gauge track has a sleeper density, I'm sorry, there is a bit slightly change in the problem. A meter gauge track has a sleeper density of on m plus 5, m plus 5. If the track is laid with rails of 13 meter length, rails of 13 meter length, find out the number of sleepers, find out the number of sleepers, find out the number of sleepers under one rail length, under one rail length. ओके क्लास, इस केस में क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। अब मीटर गेज ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर दिया, ब्रॉड गेज की जगह मीटर गेज। अ मीटर गेज ट्रैक हैज अ स्लीपर डेंसिटी ऑन m plus 5, स्लीपर डेंसिटी की इक्वेशन दी है m plus 5। इफ द ट्रैक इज लेड विथ रेल्स ऑफ 13 मीटर लेंथ, ठीक है। देखो मीटर गेज ट्रैक दिया है लेकिन रेल लेंथ कितनी दे दिया, सोल्यूशन पे आओ, रेल लेंथ कितनी दिया है 13 मीटर, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, दे दिया है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स अंडर वन रेल लेंथ, क्या निकालना है, स्लीपर डेंसिटी।
निकालना क्या है, स्लीपर डेंसिटी, यही ना होता है भाई। देखो यही मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि डायरेक्टली नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछेगा, बस हमें पता चल गया स्लीपर डेंसिटी। अब आपको भी लग रहा होगा बहुत इजी है, क्योंकि स्लीपर डेंसिटी निकालना है, इसकी वैल्यू, इसकी एक्सप्रेशन m प्लस एक्स होता है और ऑलरेडी दिया हुआ है, m प्लस 5 हमको दिया हुआ है। अब क्या करना है, देख लो, m की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इक्वेशन 1 में, m की वैल्यू हमने 13 रख दी, ये 5 हो गया, ये हो गया 18। तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्लीपर्स अंडर वन रेल लेंथ, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स अंडर वन रेल लेंथ इक्वल्स टू 18। क्यों, है ना आसान। अब स्टैंडर्ड बुक्स में इससे ज्यादा ना न्यूमेरिकल है ना कोई और वैरायटी है, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट प्रॉब्लम। तो हमने हर तरह के प्रॉब्लम देख लिए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, जिसमें वैल्यू दी है, जिसमें वैल्यू नहीं दी है, स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है और वहीं से निकालना है। सो दिस विल ब्रिंग टू एन एंड टू न्यूमेरिकल सेक्शन, that is lecture 7, as well as this also brings to an end to module 1। तो module 1 में आपको थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट 7 डिफरेंट लेक्चर्स में, इवन कुछ लेक्चर्स हमारे पार्ट वाइज भी हैं, उसमें मैंने कवर किया है, जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। राइट नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल बिगिन विद द मॉड्यूल 2, राइट, दैट इज द ट्रैक ज्योमेट्री। ये था पूरा इंट्रोडक्शन रेलवे का, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के रिक्वायरमेंट्स, उनका फंक्शन, ठीक है, और उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, और फिर उसमें से एक न्यूमेरिकल पार्ट जो स्लीपर डेंसिटी से रिलेटेड था, वो मैंने आपको बता दिया वन बाय वन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लेक्चर 7। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। विल लुक फॉरवर्ड in the lecture number 8 and we'll start with the fresh module, that is module 2. So thank you student and have a good day. Thank you.